कांकसा के बनकटी पंचायत क्षेत्र के खेरोबाड़ी आदिवासी मोहल्ले में प्राथमिक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं होने से इस विद्यालय में झाड़ बाल्टी लेकर बच्चे विद्यालय की साफ सफाई करने पर मजबूर है। सोमवार की सुबह 11 बजे बच्चों द्वारा विद्यालय की साफ सफाई करने की तस्वीर देखने को मिली। स्कूल में पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक की 4 कक्षाओं में कुल 63 विद्यार्थी हैं और 3 शिक्षक हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं। ऐसे में छात्रों को स्कूल की सफाई करनी पड़ती है। छात्रों को भारी बेंचों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जाना पड़ता है। आरोप है कि स्कूल का सारा काम हो जाता है। राज्य में जहां प्रशासन आदिवासी शिक्षा पर जोर दे रही है, वहीं बच्चे बाल्टियों से चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का काम संभाल रहे हैं। सारा काम प्रभारी शिक्षकों के निर्देशन में चल रहा है। अभिभावकों की शिकायत है कि स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं होने के कारण उनके बच्चों से इस तरह का काम कराया जा रहा है। बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है, लेकिन इस विद्यालय में बच्चों से शारीरिक श्रम कराया जा रहा है। प्रभारी शिक्षक उत्तम हाजरा ने कहा कि विद्यालय की जिम्मेदारी विद्यार्थियों को निभानी चाहिए। स्कूल किसी भी चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को नहीं ले सकता। नियुक्ति कराने का काम सरकार की जिम्मेवारी है। जब तक कोई कर्मचारी की बहाली नहीं हो जाती, तब तक विद्यालय में छात्र शिक्षक मिलकर काम करेंगे। এগুলো কি করছো? কি করছো? কে বললো ঝাঁট দিতে? কোন স্যার? কোন স্যার? এটা ঝাঁট দিতে কেন বলছে? মানে স্কুলে কাজের লোক নেই? কি নাম তোমার? বৃষ্টি সরেন। কি করছো? কি করছো? কে বললো? স্যার কোন স্যার? কি স্যার? থ্রি। আচ্ছা, কি করছো এগুলো? হ্যাঁ ঝাঁট দিচ্ছ? হ্যাঁ কে বললো? হ্যাঁ কে বললো ঝাঁট দিতে? স্যার কোন স্যার? এরকম করাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ তো তোমরা কি চাও? ওইটাই তো এখন মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করা হবে। যারা ঝাড় দিচ্ছিল তাদের ধরো এখন কি হয়ে গেছে, না মাস্টার কি বলেছে নাকি বারণ করেছে সেটাই তো বলতে পারছি না। ওদের মনে হয় কিছু অসুবিধা হয়েছে বলে মানে ওরা বলছি কাজটা আপনারা করছে। এভাবে বাচ্চাদেরকে বাড়িতে ঝাঁট দিতে বা কাজ করতে দেন? না, বাচ্চাদেরকে তো পায়খানা কি দেওয়া হয়? তাহলে বাচ্চাদেরকে আমরা রেডি করে স্কুলে এনে বাসে এইখানে যদি এরকম চাইছেন দেওয়া যাবে। হচ্ছে, কি বলবেন? এটা সরকার তো একদম বলতে গেলে এটা পুরো আইন বিরোধী কাজ। এবার দেখুন, স্কুলটা তো বাচ্চাদের নিজেদের স্কুল, আমরাও করি এখানে। আমরা যারা টিচার আছি আমরাও সাফাই করি, সাথে সাথে বাচ্চারাও করে। নিজেদের বাড়ির স্কুল, নিজেদের স্কুলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিজেদেরকে রাখতে হয়। তো সেটাই ছোটো বাচ্চা হলেও করতে হয়, তো বড়রাই বেশিরভাগ করে। অভিভাবক এইভাবে কাজ করতে দিন না, স্কুলকে দেখা দরকার। না, সে তো আমরা অভিভাবকদের সাথে তো মিটিং করে তো জানিয়েছি, মিটিং করে আলোচনা করি, প্রত্যেকটা গার্জেনদের কাছে আলোচনা আছে। যারা বড় বাচ্চা তারাই বিশেষত কাজটা করে। দেখা গেল একদম খুদে ছোট ছোট বাচ্চারা ঝাঁটা হাতে, তখন আসেনি বলে ওরা করছে। বড় বাচ্চাগুলো এলে তখন বড়রাই কাজটা করে। রেগুলার করানো হয় এভাবে? হ্যাঁ, আচ্ছা, কাজ তো করাতেই হবে, স্কুলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে গেলে তো করতেই হয়। কেন লোক নেই কেন? হ্যাঁ, লোক নেই কেন? মানে কাজের স্টাফ নেই? কী কারণে কাজের লোক নেই সেটা তো প্রাইমারি স্কুলে তো সাধারণত এরকম ডি গ্রুপের স্টাফ নেই। এবার কী কারণে নেই সেটা আমি কেন বলতে পারবো, আমার তো জানাও নেই। বিষয়টা নিয়ে আপনারা জানিয়েছেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে? ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অবশ্যই জানেন যে কোনো প্রাইমারি স্কুলেই নেই। বাচ্চাদের এভাবে কাজ করানো হয় জানেন? আশা করি জানবেন। কি নাম আপনার? আমার নাম উত্তম হাজরা। আপনি কে? আমি খেরোবাড়ি স্কুলের টিআইসি। আপনারা কি চান? আমরা চাই স্কুলে ছেলেগুলা ওগুলো করবে না, এরকম করা যাবে না। করাচ্ছে কেন তাহলে? করাচ্ছে তো এইটাই তো, কেন করাচ্ছে এইটা? কোনোদিন দেন না, ছেলেগুলা কোনোদিন আমাদের ঝাঁট দেয় না ঘরে। তাহলে স্কুলে এভাবে ঝাঁটতে পারছে? স্কুলের যদি কোনো কাজের লোক না থাকে সেটা তো বলতে হবে মাস্টারও, মাস্টার বলেছি বলে না। এবারে কিছু বল, কি চান আপনারা? আমরা চাই ছেলেদের ইয়েতে সম্ভব হবে না। ছেলেদের পড়াশোনা হোক চান? হ্যাঁ, ছেলে পড়াশোনা হোক আর ভালো পরিষ্কার হোক, আপনার এইটাই চাই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা ওঠে ওইরকমভাবে তা মানে বাচ্চাদের পড়িয়ে না করি। কি নাম আপনার? আমার সনাতন সনাতন কি সরেন। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।
रानीगंज के राजबड़े इलाके में पुस्तक मेला प्रांगण के समीप एक सड़क दुर्घटना में 2 स्थानीय साइकिल सवार बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के बारे में जानकारी मिली है कि एक बाइक सवार ने इन साइकिल सवारों को धक्का मारा था, जो कि नशे में धुत था, जिसके कारण यह दुर्घटना घटी। वहीं रास्ते से गुजर रहे शदाब खान नामक समाज सेवी ने स्थिति को देखते हुए पुलिस को और एम्बुलेंस को फोन किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। हम लोग पंजाबी मोड़ से आ रहे थे, वहाँ से राजबाड़ी बुक फेयर के सामने एक ज़ोर सा आवाज़ आया और बहुत ज़ोर से गाड़ी स्किड किया, वहाँ पर बाइक स्किड किया। तो हम लोग गाड़ी फिर घुमाए रिटर्निंग में, तो देख रहे एक बाइक एक्सीडेंट हुआ है और जो बाइक वाला था वो आपका बहुत मतलब बेहोशी का हालत में था। तो फिर हम लोग उसको उठा के साइड भी किए। तो साइड में जब कर रहे थे तो देख रहे वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था और ड्रिंक का बेसिक में था, तो हम लोग उसको फिर वहाँ पर लेटा दिए रास्ता में। तो फिर और आगे गए तो देख रहे साइकिल में 2 आदमी जख्मी हैं और उसका पैर देख रहे तो पैर आपका पूरा कटा छटा है और कटा छटा हो गया था और ऐसा लग रहा है कि फ्रैक्चर वगैरह कुछ हुआ है और बहुत गरीब दिखने में लग रहा था। तो बाइक वाला उसको मतलब मारा है ज़ोर से, तो वो जख्मी हो गया है और ये गिर गया था। उसके बाद तो आप लोग क्या किए? तो हम लोग किए, हम अचानक फिर रानीगंज थाना पे कॉल किए और वहाँ से फिर जो सर है वो एम्बुलेंस भेजे पंजाबी मोड़ से क्विकली और उन लोगों को ट्रीटमेंट में लेकर गया रॉयल केयर। अभी कैसा हालत है? अभी तो हम गए नहीं वहाँ पर, रॉयल केयर में तो नहीं पता क्या हालत है। बस फिर भी पेशेंट पेशेंट का हालत है, बहुत खराब था, पेशेंट, ठीक है, हाँ। उसको बहुत हालत बहुत खराब था। वो जो साइकिल वाला था उनको था, तो उन्हीं के चलते फिर हम एम्बुलेंस मंगवाए। वो जो बाइक में था वो मतलब ड्रिंक किया हुआ था, समझ में नहीं आया है कि क्या हालत है। ये आपका रानीगंज राजबाड़ी बुक फेयर के पास में। आपका नाम परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ रानीगंज से शादाब खान, सोशल वर्कर से आपका हेल्थ कोऑर्डिनेटर हूँ नेशनल से। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। ईसीएल के जेके नगर कोलियरी के हाजिरी बाबू के पद पर कार्यरत सत्येंद्र श्रीवास्तव की सेवानिवृत्ति के बाद सोमवार को कोलियरी प्रांगण में श्रमिकों एवं यूनियन के द्वारा उनकी विदाई समारोह आयोजित की गई। समारोह में उन्हें कर्मियों द्वारा चांदी की स्मृति चिन्ह एवं ढेर सारा उपहार दिया गया। कार्यक्रम में ईसीएल कर्मी सह भाजपा नेता अभय उपाध्याय, ईसीएल 7 ग्राम एरिया कोलियरी मजदूर कांग्रेस के सचिव चुन्नो तिवारी, भाजपा यूनियन के विनोद सिंह, कोलियरी के एजेंट मैनेजर सहित उनके परिवार के सदस्य एवं सहकर्मी मौजूद थे। कोलियरी के अधिकारियों एवं यूनियन नेताओं ने सेवानिवृत्ति के बाद उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुखी जीवन की कामना करते हुए कई बातें कहीं। उनका फेयरवेल हो रहा है क्योंकि कोलियरी में तो अच्छा जीवन उनका रहा ही है। इसके अलावा भी सामाजिक काम में वो बहुत आगे बढ़ सकते हिस्सा लिए हैं। सबके प्रिय है कोलियरी, सबके प्यारे हैं, सबके लिए प्रेरणादायी। आज क्या क्या कार्यक्रम किया गया उनका सम्मान में? उनका सम्मान में जो फेयरवेल में होता है, प्राय सब लोग डिपार्टमेंट के लोग, कोलियरी के लोग, सारे लोग तरह तरह से अपना जाहिर करेंगे। और चांदी का वो मोमेंटम दिया गया है। इसके अलावा भी और बहुत सारा। आपका परिचय? अभय मेरे बड़े भाई। चुनू भैया का फेयरवेल में हमारे सारे कामगार साथी और उनके परिवार के सदस्य उपस्थित थे। आज बड़ी ही खुशी की बात है कि उनका फेयरवेल जो है विदाई समारोह जेके नगर के कोलियरी कामगार साथी धूमधाम से मनाए। वो चांदी का मेमेंटो दे करके, उनको गिफ्ट दे करके, और हम लोग एक खुशी की बात है कि वो एक स्वस्थ होकर अपने कोलियरी से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं। और दुख है कि हम लोग अच्छे भैया अब हम लोगों को नौकरी में नहीं रहेंगे, लेकिन हमेशा हम लोगों को दिल में रहेंगे। आपका परिचय? मैं चुन्नू तिवारी। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। दुर्गापुर के गवर्नमेंट ब्रिज मैदान में हर वर्ष की भांति इस बार भी नव वर्ष के प्रथम दिन 10 दिवसीय दुर्गापुर सांस्कृतिक मेला का शुरुआत हुआ, जिसे कालपत्रु मेला के नाम से भी जाना जाता है। मेले का उद्घाटन राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने दीप जला करके किया। मौके पर दुर्गापुर के महकमा शासक सौरभ चैटर्जी, जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह, निगम की प्रशासक श्रीमती आनंदिता मुखर्जी, राकेश तिवारी, दीपंकर लाहा, उत्तम मुखर्जी, भारत सेवाश्रम के आचार्य सहित कई जाने माने लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर मंत्री ने कई बातें कही। আছেন আমাদের পুরো পিতা এবং পুরো মাতারা এবং দুর্গাপুরের আরো বিশিষ্ট জনেরা এবং সর্বোপরি এই মেলাতে আগত আমার মা ভাই বোনেরা। কল্পতরু উৎসব 1 জানুয়ারি
আজকে সারা পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মিশনে সকাল থেকেই পালিত হচ্ছে এবং কল্পতরু মেলা দুর্গাপুরের এই 42তম বর্ষে পদার্পণ করেছে এবং বিগত প্রায় 8 থেকে 10 বছর এই মেলাতে আমি আসি এবং দেখি প্রতি বছরেই এই মেলার কিছু না কিছু শ্রীবৃদ্ধি হতে। এই মেলা দুর্গাপুরের মানুষের জন্য, দুর্গাপুরের জন্য আমার মনে হয় এর থেকে বড় মেলা দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত হয় না এবং দুর্গাপুরের মানুষ অপেক্ষা করে থাকেন যে এই মেলা কবে থেকে শুরু হবে। স্বাভাবিকভাবেই মেলাতে যেমন একদিকে দোকানের পসরা, দোকানের যারা আসেন তারা আশা করে আসেন যে এই মেলাতে হয়তো কিছু বিক্রি হবে, মানুষের কাছে তারা কিছু বিক্রি করবেন। সঙ্গে সঙ্গে এই মেলাতে বিভিন্ন মানুষ আসেন, খালি মেলা ঘোরার জন্য নয়, অনেক পুরনো মানুষ, অনেক পুরনো বন্ধু, তাদের সঙ্গে কিন্তু মেলাতে আবার নতুনভাবে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়। मेले के अध्यक्ष विप्लव बसु ठाकुर ने बताया कि मेले में कृषि, विज्ञान, मनोरंजन, वस्त्र मेला लगा है। इस बार मेले में 600 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। दर्शकों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी एवं कड़ी सुरक्षा की भी व्यवस्था है। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। ईसीएल के 7 ग्राम एरिया के महाप्रबंधक ए.के. आनंद का स्थानांतरण ईसीएल के एसपी माइंस एरिया के महाप्रबंधक के पद पर हो गया है। उनकी जगह पर एसपी माइंस एरिया के उप महाप्रबंधक उपेंद्र सिंह पदोन्नति होकर 7 ग्राम एरिया के नए महाप्रबंधक बनकर आए हैं। सोमवार को ए.के. आनंद ने उपेंद्र सिंह को अपना पद सौंपा। इस दौरान 7 ग्राम एरिया के अधिकारियों एवं यूनियन नेताओं ने महाप्रबंधक ए.के. आनंद को विदाई दी एवं नए महाप्रबंधक उपेंद्र सिंह का स्वागत किया। मालूम हो कि 7 ग्राम एरिया महाप्रबंधक के पद पर ए.के. आनंद द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है। उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया तथा उत्पादन को बढ़ाते हुए 7 ग्राम एरिया को मुनाफा कराया। इस दौरान इन्होंने इलाके में कोयला चोरी पर भी पाबंदी लगाई। इस दौरान इन्होंने भावुक होते हुए अधिकारियों से कहा कि जिस तरह से आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, उससे दोगुना सपोर्ट हमारे नए महाप्रबंधक को कराएगा, ताकि उत्पादन के क्षेत्र में घाटा को खत्म करने के क्षेत्र में 7 ग्राम का नाम ऊपर हो। इस दौरान उपेंद्र सिंह ने भी कई बातें कहीं। पत्रकारों से बात करते हुए उपेंद्र सिंह ने बताया कि मेरे कार्यकाल का सफर बीसीसीएल से शुरू होकर सीसीएल, एमसीएल, डब्ल्यूसीएल तक, अंत में ईसीएल तक रहा और उन्होंने कई और बात कही। हम लोग सामाजिक तौर पे चोरी एक कुकृत है, जो भी उसको कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उसको कभी भी सही नहीं कहा जा सकता कानून के नज़रों में। और इसे देश, भारत सरकार को, राज्य सरकार को रॉयल्टी की क्षति होती है, क्योंकि वो अगर सही तरीके से कोयला उपभोक्ता तक पहुँचे तो उसमें बहुत सारी रॉयल्टी, टैक्सेस गवर्नमेंट को प्राप्त होता है और हमारे उत्पादित कोयले का कीमत भी मिलता है कंपनी को। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है इस क्षेत्र में या हो रहा था और उसमें कोई सरकार ने कोई एजेंसी से जांच कराना उचित समझा तो ठीक ही हुआ। मैं उसके पक्ष में रहूँगा, इसलिए कि हम सबों की नैतिक जिम्मेवारी है कि किसी भी तरीके से चोरी ना होने दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आसनसोल दक्षिण की भाजपा विधायिका अग्निमित्रा पाल ने सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रानीगंज के बांसड़ा, मंगलपुर के झांटी डंगाल और नोतोनेग्रा इलाकों में 500 कंबल वितरण किया एवं कहा कि शीतकाल के मौसम में ठंड के कहर से बचने के लिए जरूरतमंद लोगों को ऊनी वस्त्र, कंबल प्रदान किए जा रहे हैं। असहाय जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान करना जरूरी है एवं उन्होंने साथ ही और भी कई बातें कही। सबको मेरा नमस्कार। आज आप लोग यहाँ आए हैं, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी
हर टाइम हमारे पास है, हमारे साथ है, गरीबों के साथ है। और उसी लिए मोदी जी सारे हमारे माँ बहन के लिए घर भेज रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना का घर आपको मिला है घर, लेकिन आपको था, क्योंकि गरीबों के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी घर भेज रहे। लेकिन आप लोग तक घर नहीं पहुंच रहे, घर टीएमसी वाले चोरी कर रहे। आज बाथरूम भेजा जा रहा है, शौचालय, बाथरूम आप लोग के लिए, माँ बहनों के लिए। कौन भेज रहे? मोदी जी भेज रहे। बाथरूम का पैसा कौन चोरी कर रहा है? ममता बनर्जी का सरकार चोरी कर रही है। ये आप लोग को जानना चाहिए। आज मोदी जी हम लोग को सिखाते हैं कि राजनीति माने है सेवा करो, और इसलिए आज हम लोग आए हैं। आप लोग के हाथ में कुछ कंबल देंगे। बहुत ठंडा है, हम ये समझते हैं कि ये कंबल पाकर आप लोग को कुछ स्वस्ति होगा। छोटे छोटे बच्चे, यही बोलना है, अच्छी तरह से रहिए, और कोई भी कुछ दरकार हो, हम आपके घर के बेटी है, ठीक है? कोई भी दरकार हो। इस अवसर पर 3 इलाकों में मिलाकर 500 जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष परिमल माझी, पूर्व मंडल अध्यक्ष संदीप गोप आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आदि समाज का बड़ा त्योहार सोहराय बंधना त्योहार मनाया जाएगा। इसे लेकर सोमवार को रानीगंज के आदिवासी समाज की तरफ से संजय हेम्ब्रम के नेतृत्व में आमरासोता ग्राम पंचायत कार्यालय को ज्ञापन सौंपा गया। इस बारे में जानकारी देते हुए संजय हेम्ब्रम ने कहा कि इस साल 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आदिवासियों का त्योहार बांधना त्योहार मनाया जाएगा। आदिवासियों की तरफ से आज एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें यह मांग की गई कि हर साल की तरह इस साल भी पंचायत की तरफ से लाइट, साफ सफाई और पानी की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि आज यह ज्ञापन पंचायत कार्यालय के सचिव स्तर के एक अधिकारी को सौंपा गया। साथ ही उनको पूरा भरोसा है कि पंचायत की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी यह सारी सुविधा प्रदान की जाएगी। বাছড়া আতুসলনার পক্ষ থেকে আমাদের যে 10ই জানুয়ারি থেকে 16 তারিখ অবধি 16 জানুয়ারি পর্যন্ত যে সরহাই পরব আছে, যাকে বাংলায় বাঁধনা পরব বলছে, সেই উপলক্ষে আমরা প্রত্যেক বছর মানে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে আমাদের এলাকার যে আদিবাসী পাড়াগুলো আছে, সেই আদিবাসী পাড়াতে আলোকসজ্জা এবং পরিষ্কার এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়। সেই দাবি নিয়ে আমরা আজকে এসেছিলাম, যাতে এবছরও গত বছরের পাড়া এই বছরও সেই সমস্ত ব্যবস্থা পঞ্চায়েত থেকে করে দেওয়া হয়। সেই জন্য আমরা এই পঞ্চায়েত অফিসে এসেছিলাম। এখনকে তো পেলাম না, আমরা যিনি আছেন পঞ্চায়েতের সেক্রেটারি, তার হাতে আমরা আমাদের যে দাবিপত্র সেটা আমরা দিলাম। তিনি বলেছেন যে তিনি তার সঙ্গে কথা বলে জানাবেন। এখন যেভাবে আমরা ভাবছি যে দেখুন এবার কী যে করে পঞ্চায়েত প্রশাসন কী করে, প্রত্যেক বছর তো পায়। এখন দেখুন উনি বলেছেন যে কথা বলে বলবেন, তারপরে বুঝতে পারবো হবে কি না সেই ব্যবস্থা। তো ওনাকে তো করতেই হবে, যেহেতু আমরা প্রত্যেক বছর আমরা এই সুযোগ সুবিধাটা পাই। যেখানে সরকার একটা দুর্গাপুজোর জন্য 50,000 টাকা দিচ্ছে, সেখানে আমাদের আদিবাসী এলাকায় এই সামান্য টাকা যা দিতে পারবে না, খরচ বহন করতে পারবে না, সেটা তো মানে যদি না করে সেটা আমাদের পক্ষে দুর্ভাগ্য। কি নাম আপনার? নাম সঞ্জয় হেমব্রম। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। एक और जहां लोग अंग्रेजी न्यू ईयर के आगमन पर धूम धड़ाके के साथ पाश्चात्य सभ्यता में रंगकर विभिन्न प्रकार के आयोजन करते हैं, वहीं दूसरी ओर हिंदी संस्कृति को बचाए रखने के प्रयास में इस नए वर्ष का स्वागत जग शांति एवं विश्व कल्याण हेतु रानीगंज के श्री सदानंद चक्रवर्ती लेन स्थित गुरुकुल स्कूल रोड में समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद तथा मंजुलता चौधरी के द्वारा 5 दिवसीय श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का आयोजन किया गया।
आयोजित श्री दुर्गा पूजन सप्तशती पाठ के दूसरे दिन आचार्य वेद पंडित श्री कृष्ण शास्त्री आविरकार तथा 8 पंडितों के द्वारा मुख्य यजमान रोहित चौधरी एवं उनकी पत्नी के द्वारा श्री दुर्गा पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, श्री ललिता सहस्त्र नाम एवं पुष्प अर्चना कुमकुमार्चन संपन्न हुआ। राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने बताया कि इस धार्मिक अनुष्ठान में खेड़ी घाट ओमकारेश्वर के महामंडलेश्वर श्री स्वामी विवेकानंद पुरी के सानिध्य में वेदों के ज्ञाता भारत प्रसिद्ध आचार्य श्री कृष्ण शास्त्री आविष्कार के नेतृत्व में 8 पंडितों द्वारा सस्वर श्री दुर्गा सप्तशती पाठ की जा रही है। 3 जनवरी को दुर्गा सप्तशती पाठ, अग्नि स्थापना, अग्नि पूजन, नवग्रह देवता हवन का आयोजन होगा। 4 जनवरी को श्री दुर्गा सप्तशती हवन पूजन आयोजित होंगे, जबकि अंतिम दिन 5 जनवरी को देवता पूजन हवन पूर्णाहुति कार्य भंडारे का आयोजन होगा। उन्होंने इस आयोजन में लोगों को स्वयं तथा अपने परिवार के साथ शामिल होकर पुण्य अर्जित करने की बात कही। कार्यक्रम के आयोजक रोहित कुमार, रविंद्र चौधरी, श्वेता देवी एवं सोनल देवी ने बताया कि नव वर्ष के आगमन पर इस तरह का पाठ का आयोजन काफी महत्वपूर्ण होता है। शक्ति की देवी श्री दुर्गा सप्तशती पाठ करने से मां हर तरह के संकट से मुक्ति दिलाती है, भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। इसीलिए इस तरीके का पाठ का आयोजन से लोगों को मन में शांति मिलेगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित समाज सेवी रतनलाल सतनालिका, राम गोपाल बाजोड़िया, मनोज शराफ, संदीप खैतान मुख्य रूप से उपस्थित थे। सबसे बड़ा तो पहला महत्व तो क्या है, संकल्प का महत्व। क्योंकि राजेंद्र चौधरी जी का परिवार का जो ये उत्सव करने का, ये आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो भगवती की प्रसन्नता और विश्व मंगल के लिए, कि हमारे इस सत्कर्म से न केवल इस भूभाग पे, इस रानीगंज में पूरे विश्व का मंगल हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण। तो मुख्य उद्देश्य उनका यही है कि सबका मंगल हो, सबके जीवन में अभ्युदय हो, सबको भगवती की प्रसन्नता मिले। हमारे परिवार को भी, यहाँ के जो महिजन लोग हैं, महाजन लोग हैं, जो यहाँ के बुरी अनेक जीवन में अपने क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं, सबके जीवन में भगवती की प्रसन्नता हो, वही इस पाठ का, इस नवजीवनी पाठ का, ललिता सहस्त्रार्चन का, इस सबका महत्व यही है कि सबके जीवन में अभ्युदय हो, सबको प्रसन्नता हो। 5 दिवसीय इस धार्मिक अनुष्ठान के बारे में बताएं। तो धार्मिक अनुष्ठान 1/1/2023 से 5/1/2023 तक है। इस धार्मिक अनुष्ठान में दुर्गा जी का सप्तशती पाठ होगा एवं हवन का कार्यक्रम है। 5 तारीख को हवन का कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद में भंडारे का आयोजन किया गया है। यह 9 वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। तो ये कहा जाता है कि दुर्गा देवी जिसके ऊपर में खुश हो जाती है उसका सर्व कल्याण हो जाता है। तो मैंने ये कार्यक्रम इसलिए रखा है कि सारे जगत का इसमें उद्धार हो, लोगों की खुशियाँ एवं प्रसन्नता काफ़ी बढ़े, लोगों की काफ़ी उन्नति हो, और ख़ास कर के हमारे इलाके के जितने भी बंधु बांधव एवं दोस्त हो, सब कोई इस कार्यक्रम को देखने के लिए आवें एवं इस कार्यक्रम का पुण्य भागी बनने की चेष्टा करें। पहले दिन देवता स्थापना का काम हुआ था एवं आज दूसरे दिन भगवान शिव जी का अभिषेक हुआ है एवं अभी दुर्गा सप्तशती का पाठ चालू होगा, जो 2-3 दिन तक डेली चलेगा। एवं आज शाम को ललिता सहस्त्र नाम के पाठ के साथ में पुष्पार्चन किया जाएगा दुर्गा माता जी का, और कल अग्निकुंड की स्थापना होगी, अग्नि का प्रज्वलन होगा एवं हवन वगैरह भी होगा। ये कार्यक्रम आपको 2 दिन तक चलेगा। 5 तारीख को इस कार्यक्रम की दोपहर को पूर्णाहुति होगी एवं पूर्णाहुति के बाद में भंडारे का आयोजन है। इस कार्यक्रम को जो आचार्य हैं वो नागपुर से आए हुए हैं, वेद के बहुत बड़े विद्वान एवं पंडित आदमी हैं। इनको भारत सरकार का सारा पुरस्कार भी मिला हुआ है, वेद से रिलेटेड जो भी पुरस्कार है, जैसे कालिदास का सम्मान है और भी जितने भी सम्मान होते हैं, इनको सब मिले हुए हैं। और ये बहुत ही विद्वान आदमी है। इनकी ये 11वीं पीढ़ी है जो ये सब कार्यक्रम कराती है एवं वेद के ये लोग काफ़ी ज्ञाता है। एवं इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन हमारे गुरु जी स्वामी जी
महामंडलेश्वर श्री विवेकानंद जी स्वामी ने आयोजित करके दिया है, जो कि ओमकारेश्वर के निकट गिरी घाट है, नर्मदा घाट के ऊपर में उनका आश्रम है। वो वहाँ रहते हैं, वो बराबर हमारे पास में आना जाना उनका रहता है एवं उनकी कृपा हमारे ऊपर में सदा रहती है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज।